Hello everyone, welcome back to Vectors. Vectors में in this video what we are going to do is we are going to find the triple product. अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट किया है और क्रॉस प्रोडक्ट किया है. डॉट में क्या होता था, थ्री वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे और टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर मिला था, वी कॉल्ड इट वेक्टर प्रोडक्ट. टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर मिला, वी कॉल्ड इट स्केलर प्रोडक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई थ्री वेक्टर्स. थ्री वेक्टर्स लेट्स से ए बी एंड सी है. अब मल्टीप्लाई करने की बात है तो डॉट, दोनों में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं या फिर एक डॉट और एक क्रॉस कर सकते हैं या पहले क्रॉस बाद में डॉट कर सकते हैं या फिर दोनों में क्रॉस कर सकते हैं. These are the four possibilities. There is no other possibility. Now one more thing कि पहले A और डॉट B निकाले या पहले B डॉट C निकाले, that is another option that we have. So let me write them again. Let me write this again. Let me write this again. And let me write this again. I know you're not stopping me. Okay, so either calculate this first or calculate this first. इन दोनों में या तो फर्स्ट ये या फिर फर्स्ट ये, या तो फर्स्ट ये या फिर फर्स्ट ये. Now you have something to do. You have to go through all of them one by one and decide कि जो फाइनल आंसर आएगा वो वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा. जो फाइनल आंसर आएगा that is going to be vector or scalar. Like if I take this case, I will say A cross B है. A cross B is a vector और वेक्टर के साथ वेक्टर का डॉट लेंगे तो हमें स्केलर मिलेगा. तो similarly you have to go through all 7 remaining and you have to decide whether you are getting vector or you are getting a scalar. So take out your notepad and try to write. वेक्टर मिलेगा तो V लिखना, स्केलर लिखेगा तो S लिखना. बाकी देखते हैं क्या है. Very important, very fun thing to do. So don't waste your time and don't stop yourself from doing this. Take out your notebook and try to write this. This is very good concept building exercise. I'm going to do now. फर्स्ट वाले केस में कुछ नहीं आएगा. आपने स्केलर लिखा होगा, यूजुअली स्केलर लिखते हैं, बट देयर विल बी नथिंग बिकॉज ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है. ए डॉट बी अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट तो होता ही नहीं है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड एट ऑल. Now if you think this is something worth doing it, the practice, then again pause the video and try to attempt all these. I am again going to solve. The second one, अब आपको पता चल गया होगा कि इसका भी कोई मतलब नहीं. थर्ड की बात करते हैं. A डॉट B इज अ स्केलर. स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस, वेक्टर नहीं देगा, स्केलर भी नहीं देगा, कुछ नहीं मिलेगा. A डॉट बी इज ए स्केलर. स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस नहीं होता है, वो तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है. वी कॉल इट स्केलर मल्टीप्लीकेशन. यहां देखना, B क्रॉस C एक वेक्टर है और वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो स्केलर मिलेगा. सो ये और ये हम कर चुके ऑलरेडी. यहां आते, B क्रॉस डॉट C इज बेसिकली अ स्केलर. स्केलर क्रॉस वेक्टर इज नॉट डिफाइंड. A cross B is a vector. Vector cross vector is basically a vector. And again, vector cross vector is a vector. So what we have is, in two cases, we are getting scalars. In two cases, we are getting vectors. So three vectors are multiplied in such a way that they result in a scalar. So these are called scalar triple product, and three vectors are multiplied in such a way that they result in a vector are called vector triple product. ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और ये वेरिएबल टेम्परेचर प्रेशर नहीं है. दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. So that was the idea behind the triple product.
Now, in this video, we are going to focus on scalar triple product. Scalar triple product का मतलब हुआ कि 3 vectors multiplied in such a way. Now you know what I am going to write. That they results in a scalar is called scalar triple product. It is called scalar triple product, and there are only 2 ways: A dot B cross C and A cross B dot C. These are the 2 ways we are going to get a scalar. So these are called scalar triple product. Now let's say A is 1, 2, 3. B is 2, 3 minus 1. Can someone tell me what I am going to write as C? ये मेरा स्टैंडर्ड नंबर्स है. एवरी टाइम आई राइट दिस. इवन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में भी मैंने यही नंबर्स यूज करता था 3/3 में. 1, 2, 3, 2, 3 minus 1, 0, 1, 2. So I am going to solve this. You are going to solve this and find the answer. तो पहले let me find B cross C. B cross C will be I, J, K. पहले B मतलब 2, 3 minus 1 and C मतलब 0, 1, 2. That gives me I component क्या हुआ? I component आया 6 plus 1 that is 7. J component is minus 4 and K component is 2. Now we have to find A dot B cross C मतलब 1, 2, 3 dot 7 minus 4, 2. That gives me 7 minus 8 plus 6 and that comes out to be 5. Now you have to find that A cross B dot C. So if you solve this, it is again going to be equal to 5 only. Now एक काम करते हैं, 3 वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर का अगर मैं एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करता हूं 1, 2, 3, 2, 3 minus 1, 0, 1, 2. ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए फिर बी फिर सी. अच्छा दोनों में सेम ही है, ए और बी और सी. तो मैंने ए बी सी कैलकुलेट किया. व्हाट डू आई गेट इज 1 into 7 minus 2 into 4 plus 3 into 2 and that comes out to be again 5. What is this? So this tells me that A dot B cross C और A cross B dot C ये दोनों इक्वल होते. And if these are equal मतलब कहाँ डॉट लगाना है कहाँ क्रॉस लगाना है देयर इज नो इंपॉर्टेंस. पहले क्रॉस फिर डॉट या पहले डॉट फिर क्रॉस. तो लेट्स नॉट राइट डॉट एंड क्रॉस. रिमूव देम ऑल टुगेदर एंड सिंपली राइट ABC. सिंपली राइट ABC. जहां मन करे डॉट लगा लो, जहां मन करे क्रॉस लगा लो. लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि कैलकुलेट क्या करोगे, पहले क्रॉस कैलकुलेट करोगे फिर डॉट कैलकुलेट करोगे. वॉट एवर यू राइट. बिकॉज अगर आपने पहले डॉट और बाद में क्रॉस किया तो कुछ नहीं मिलेगा. तो आपको पता चल जाएगा, यू विल नो कि पहले हमें क्रॉस कैलकुलेट करना है और फिर डॉट कैलकुलेट करना है. सो आइडिया इज कि ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी दोनों सिंपल होते हैं. टू वी राइट देम ABC and which is again equal to what? This simple determinant के equal है and that is equal to A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. That is the value of ABC. This looks like a box and that's why we call it box product also.
कि फाइंड बॉक्स एबीसी। बॉक्स एबीसी मतलब एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको जहां मन करे डॉट लगाओ, जहां मन करे क्रॉस लगाओ, कैलकुलेट, पहले क्रॉस करना है और फिर उसके साथ डॉट कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा यूजफुल यही एक प्रोडक्ट होता है, बाकी का एस it's okay use. So this is very important. We are going to do so many things with this scalar triple products. So let's go to the next screen and solve some question. एक question तो हम solve कर चुके हैं. Okay, so now let's start with this box ABC. Box ABC का वैल्यू क्या था? एक डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. Suppose if I interchange B and C. If I interchange B and C, क्या होगा? वैल्यू में क्या चेंज आएगा? So actually it will be negative because we know that पहले A है, फिर B है, फिर C है. अगर C और B को इंटरचेंज कर दिया मतलब we have interchanged two rows, और two रो को अगर चेंज करते हैं तो as you know in case of determinant कि उसका वैल्यू साइन चेंज कर लेता है, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव. अच्छा जी, If I से A और B को इंटरचेंज किया तो क्या होगा? तो भी माइनस होगा. If I से A और C को इंटरचेंज किया तो भी माइनस होगा. तो now tell me what would be BCA? प्लस होगा, माइनस होगा या कुछ और होगा? Think of it, pause the video, think of it, I'm going to tell you. तो देखना, BAC किया तो माइनस आया. Now I'm going to interchange these two. B A C था पहले से, अब A C को अगर मैं C A लिखता हूं एक और माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, मतलब इज इक्वल टू B C A. सो आइडिया है कि कब चेंज होगा साइन और कब नहीं होगा. अगर देखना ऑर्डर ABC है, अगर ऐसा चलने में ABC रहा तो दैट इज सेम, और अगर चेंज हुआ तो अब यहाँ देखो ABC नहीं है, ACB हो गया तो माइनस हो गया. A के बाद B नहीं आया तो माइनस हो गया. A के बाद B नहीं आया तो माइनस हो गया. A के बाद B, B के बाद C सही है तो प्लस रहा. If I say I have A, B और उसके बाद C तो there will be no change, that is exactly same. If I say B, C, A ये हो चुका है. सो द आइडिया इज कि यू कैन सी द इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई कहां से कहां आए हैं, या फिर सीधा देखो ABC का ऑर्डर अगर फॉलो करते हैं ऐसा तो सेम रहेगा, और अगर चेंज हो गया, उल्टा हो गया ABC तो माइनस आएगा, उल्टा हो गया ABC तो माइनस आएगा, उल्टा हो गया ABC तो माइनस आएगा, सीधा रहा ABC तो प्लस है, सीधा रहा ABC तो प्लस है. नाउ यू हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड ऑन योर ओन कि व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से बाय सेम डायरेक्शन में है और उल्टा डायरेक्शन में है. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स ABC. नाउ टेल मी 2A 3B -4C का वैल्यू बॉक्स ABC के टर्म में क्या होगा. सो वी नो दैट कि 2A का मतलब फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाई है, सेकेंड रो में 3 मल्टीप्लाई है, थर्ड रो में 4 मल्टीप्लाई है. दिस एक्चुअली वर्क्स एग्जैक्टली लाइक डिटर्मिनेंट. ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है डिटर्मिनेंट के हिसाब से. सो आई कैन से इसमें से 2 कॉमन आएगा फर्स्ट रो से, 3 कॉमन आएगा सेकेंड से, -4 आएगा थर्ड से, एंड वी आर लेफ्ट ओवर विद -24 बॉक्स ऑफ ABC. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. A + B, B + C, C + A का वैल्यू क्या होगा. दिस रिजल्ट यू आर गोइंग टू रिमेंबर. पहले डिराइव करते हैं और फिर याद करेंगे कैसे होगा. द आइडिया इज कि R1 देखो इसमें एक ही एलिमेंट है, R1 - R2 मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना. ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो. दिस नॉट एक्चुअली फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस कंप्लीट इज फर्स्ट रो. वो तो यहां दिख रहा है, बट डिटर्मिनेंट में ये जो 2A है वो फर्स्ट रो में होगा ना. 2A1 2A2 2A3.
This will be second row, 3b1, 3b2, 3b3. This will be third row, minus 4c1, minus 4c2, minus 4c3. तो अगर मैं r1 minus r2 करता हूं तो I will get a minus c. अगर मैं r2 minus r3 करता हूं तो I will get b minus a. और इसको एज इट इज रहने देते हैं. If I add first and third row, there will be no change and what I get is 2a. If I add this and this, second और third row को add करोगे तो you will get b plus c. That is not advisable. कोई फायदा नहीं हुआ. Let's keep it like this only. First row से मैंने 2 कॉमन ले लिया. First row से 2 कॉमन लिया तो a, b minus a, c plus a. Now what I am doing is r2 में r1 ऐड किया. R2 में R1 ऐड किया तो B आया और R3 में R1 सबट्रैक्ट किया तो C आया. So what do I get is 2 times box ABC. This is something you are going to remember. This is something you are going to remember कि A plus B, B plus C, C plus A का वैल्यू 2 times box ABC होता है. वैसे एक और मेथड भी है. What I am going to do is R1 plus R2 plus R3. अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं आई विल गेट 2 times a plus b plus c. This is b plus c, this is c plus a. Let's take this 2 common, so that will be a plus b plus c, b plus c, c plus a. Now ये तो a plus b plus c रहने दो. यहां पे हम राइटिंग r2 minus r1. That is minus a. R3 minus R1. Think about it. R3 minus R1 is minus B. And the next step I am going to do is R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3 will be C minus A minus B. यहां से अगर मैं माइनस ए कॉमन ले लेता हूं तो 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे. Now what we have, this ABC is in cyclic manner anti-clockwise, so I can simply write it as ABC. There won't be any problem and that is your answer 2 times A plus B plus C. ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है. एक और रिजल्ट इसके बाद बताऊंगा वो भी याद रखना है. बाकी सारे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बहुत फास्ट कैलकुलेट हो जाता है. There is no issue. इसमें वॉट एवर प्रॉपर्टी यू थिंक यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई. देयर इज नो फिक्स रूल कि ऐसे ही करना है या ऐसे ही. वॉट एवर यू वॉन्ट, यू आर कंफर्टेबल विद डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट आपको अगर पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये बात समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. तो पहले आपको डिटर्मिनेंट पढ़ना है एंड देन विल बी एबल टू मैनेज दिस. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन. सो स्टे विद मी. Okay, so now we have these 2 more questions. The first question is, we are given some 3 vectors P, Q and R as a combination of 3 vectors A, B and C. अभी ये मैं बॉक्स के एप्लीकेशन के हिसाब से करा रहा हूँ, but these are actually very standard and these are called reciprocal system of vectors. रेसिप्रोकल ऑफ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स में अलग से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, अलग से कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा. बट at the moment I am not going there. I am just telling you this. I am just taking this question as a question of scalar triple product. So first part, if I solve, we have A plus B dot P. P is B cross C upon box ABC plus B plus C dot Q, and Q is C cross A upon box ABC plus C plus A vector dot R मतलब A cross B upon box ABC. That is the idea. Now what? Denominator तो हर जगह box ABC है, so let's take that common. And numerator is A dot B cross C plus B dot B cross C plus this is B dot C cross A plus C dot C cross A plus, let's write it here, C dot A cross B plus A dot A cross B.
Now what? Idea is कि the first part is, ये तो चलो बॉक्स ABC ऐसे रहने वाला है. This is what? This is simply box ABC. And this is box BBC. A dot B cross C. Plus box BCA plus box CCA plus box CAB plus box AAB. That is it. तो 1 upon box ABC है, यहां मिला box ABC. बॉक्स BBC का वैल्यू 0 होगा. थिंक ऑफ इट. वाई? बॉक्स BBC का वैल्यू 0 होगा बिकॉज डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एंड सेकेंड रो आर सेम, B1 B2 B3 B1 B2 B3. डिटर्मिनेंट में अगर दो रो सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो गया. सिमिलरली CCA भी 0 होगा और AAB भी 0 होगा. नाउ दिस BCA कैन बी रीरिटन एज ABC. देखो ABC साइक्लिक ऑर्डर में, एंड थर्ड वन ऑल्सो ABC साइक्लिक ऑर्डर में. Now I am not going to stretch too long, and the answer will be 3. And the answer will be 3. That's it. In the same way, you are going to solve the second part. That is your homework. I am not going to solve that. तो this is your part. You are going to solve this. वही है, सिर्फ थोड़ा सा changes हैं that you have to understand, you have to utilize. ये पार्ट जरा देखना ध्यान से. What we have is एक वेक्टर D दिया हुआ है, lambda A plus mu B plus mu C, and you have to find the value of lambda. Value of lambda will be actually I will say second option. You should also take only this much of time. But क्या मैंने किया है, ये हमने क्रैमर्स रूल आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट में. डिटर्मिनेंट में यू हैव डन क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल में दिस इज समथिंग लाइक एक्स वाई जेड में वी हैव 3 इक्वेशंस. क्या है? लैम्डा A1 प्लस म्यू A2 म्यू B1 प्लस न्यू C1 इज D1. लैम्डा A2 प्लस म्यू B2 प्लस न्यू C2 इक्वल टू D2, एंड लैम्डा A3 प्लस म्यू B3 प्लस न्यू C3 इक्वल टू D3. और वहां से हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है, सिमिलरली लाइक एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. इफ यू रिमेंबर क्रैमर रूल में बॉक्स होता था ABC, डिटर्मिनेंट ABC, उसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता था तो फर्स्ट कॉलम को चेंज करते थे D से. B का वैल्यू फाइंड करना है Y का तो सेकंड कॉलम को चेंज करते थे, और C का वैल्यू फाइंड करना है तो थर्ड कॉलम को चेंज करते थे. तो आई कैन डायरेक्टली से कि ये X के करस्पॉन्डिंग है, तो आंसर विल बी DBC अपॉन ABC. सिंपल. ये लैम्डा का वैल्यू हो गया. म्यू का वैल्यू फाइंड करना हो तो यहां D आ जाएगा, ADC, नीचे तो ABC रहेगा, और न्यू का वैल्यू क्या होगा? थर्ड कॉलम में D आ जाएगा, तो ABD अपॉन नीचे ABC. यूजिंग दिस आई कैन से पहला DBC ऊपर मैच कर रहा है, नीचे ABC मैच नहीं कर रहा है, निगेटिव है आंसर का, तो ये गलत हो गया. ऊपर देखो DBC मैच कर रहा है, नीचे ABC मैच कर रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर. थर्ड में देखो DBC नहीं है, उसका नेगेटिव है, और नीचे ABC है, तो ये भी आंसर का नेगेटिव हुआ, ये भी आंसर का नेगेटिव हुआ, ये एग्जैक्ट आंसर हुआ. बट दिस इज टू मच थिंकिंग. ये बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अ सिंपलर अप्रोच. Everywhere you see in the denominator we have box of DBC, and in denominator we have box of ABC. So I can say this is D dot B cross C. I can say this is D dot B cross C. तो एक काम करते हैं, D तो अपने पास है, मैं B क्रॉस C से पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं. लेट मी मल्टीप्लाई दिस D dot B cross C. This will be dot B cross C. म्यू B में dot B cross C प्लस न्यू C में dot B cross C.
नथिंग स्पेशल। हमें डी डॉट बी क्रॉस सी चाहिए था, डी था उसमें बी क्रॉस सी के साथ डॉट ले लिया। दिस गिव्स मी डी बी सी, दिस गिव्स मी लैम्डा ए बी सी, दिस गिव्स मी 0 बिकॉज बॉक्स बीबीसी है और बॉक्स बीबीसी का वैल्यू 0 होता है। लेट मी राइट म्यू इंटू बॉक्स बीबीसी प्लस न्यू इंटू बॉक्स सीबीसी। ये दोनों सेम है इसलिए 0 आ गया, ये दोनों सेम है इसलिए 0 आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? दैट इज डीबीसी का बॉक्स अपॉन एबीसी का बॉक्स। तो दैट इज अ वेरी सिंपल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. This is a very simple approach of solving this question. So एक basic idea था about the scalar triple product. Now we are going to study about the application of scalar triple product.